A very good morning to all my dear students. Today we are just going to continue our previous video of the lesson The Proposal, which is almost the last lesson of our syllabus. So here we are just going to continue with that dispute which has just been occur now between Lomo and Natalia over the Oxen Meadows. Actually, they have just a kind of common dispute which they have some kind of misunderstanding either by Lomo, either by Natalia. So here, another character that is Stefan had a note here, so that he is not a witness of their dispute. But now we come to know that there is a you can say minor dispute between Lomo and Natalia, and here Lomo has just distract from his proposal of marriage towards Natalia. So Natalia was just a kind of girl has been shown here who can be, you can say, create a dispute over a petty thing, as here Oxymeadows, and because Oxymeadows are just a thing, and if they get married, they will become the both become the partner of that particular land. But Natalia did not focus over it, but it's not the totally fault of Natalia, because Lomo is also not going to tell till this time. He didn't tell the proposal to Natalia because somehow Natalia didn't give any chance to know the reason of visit of the Lomo. And here now let's get start. One of the things that where Lamo has to um, talk has a talk over the auction meadows dispute. Now Lamo says that to Natalia that I will show you the documents. Natalia Stepnova. Here Lamo giving a strong agreement to his own view that the auction meadows belongs to Lamo's family, not of Natalia. But then Natalia says, no, you are simply joking or making fun of me. Now, Natalia is just such a kind of person who is just taking all these things to be a joke. And what a surprise! We had the land and nearly the 300 years, and then we suddenly told to here, Natalia is going to discuss that. No, it's a big surprise for me that being the nearly 300 years, only Oxen Meadows belongs to us, but suddenly you are up here and tell us that it's not ours. Right now, Ivan Vasilevich, as the Lomo and Natalia, just keeping the name of each other in a full sense, that is Ivan Vasilevich and here Natalia Stapnova. These two things just represent one thing, that they do not give any kind of respect, but they just focusing on the dispute. Right, I can hardly believe my own ears. Here Natalia want to say that she could not believe her own ears that Lomo show all the documents related to that particular land, that is Oxen Meadows, right? But here, what the main reason that he could not that she could not believe her own ear is that according to her, that these Oxen Meadows aren't worth much to me. They only come to the so here five decisions and are worth perhaps 300 rubles, but I cannot stand unfairness. Say what you will, I cannot stand unfairness. Here our here Ndala want to say that these auction meadows are not of that particular money. It may be only of 300 rubles, but only thing is the question of trust and question of policy. So here Natalia raised over these two things, and she just want to demand that there is a question of identity and question of trust over the auction meadows. And here is only a worthless, you can say, that particular land. But I could not even get it so possible that how it could be belong to you, because after the before 300 years ago, all three you can say all these lands which just bind together, and in which one is Oxen Meadows, just belong to their family. But how can Lamo be so that particular land Oxen Meadows is familiar to that family, right? Here Lomo says,
Hear me out, I implore you, the peasant of your father's grandfather, and as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks of my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them a pleasant. Okay, now here Lamo wants to get a satire over that, because here our Natalia has said many of the things to Lamo. Now Lamo's turn here. Now here Lamo becomes little bit strict and says, "Hear me out. Now you listen to me, the peasant of your father's grandfather, as I have already been the honor of explaining to you. Use the baked bricks of my aunt's grandmother." Now here Lamo says that grandfather's your father's grandfather used to make the bricks. Bricks means that hard, square. You can say that particular material which is made of sand, that is known to be eat in Hindi. So for my aunt grandmother, here Lomo wants to say that कि आपके पापा के दादा के जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी वर्कर्स थे, वो मेरे आंट के यहाँ क्या बनाने का काम करते थे? ब्रिक्स यानी कि ईंटें बनाने का काम करते थे. नाउ माई आंट ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक दैम ए प्लीजेंट. वो सब मेरी ग्रैंड आंट के ग्रैंड मदर की बात थी कि उन्होंने ये सब चीज़ें होने दी, राइट? उन्होंने ये सब क्या किया है? आप लोगों पे एहसान किया है. नटालिया, आई कैन नॉट मेक head or tail of this about aunts and grandfathers and grandmothers. The widows are ours, that's all. मैं नहीं सुनना चाहती कि क्या आंटी, क्या ग्रैंडफादर, क्या ग्रैंडमदर्स कहती हैं. मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि विडोज हमारे हैं और दैट्स ऑल, बस यही बात. लमो, नो माइन, मेरे हैं. नटालिया, आवर्स, नहीं हमारे हैं. यू कैन गो ऑन प्रोवाइडिंग इट for 2 days on end. You can go and put 15 dresses jackets, but I tell you they are ours. Now वो उसको कहती है, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट, तुम इसे प्रूव करते रहो, चाहे 2 दिन हो जाए तुम्हें, बेशक इसका कोई अंत ही नहीं है. यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेसेस जैकेट, बट आई विल टेल यू दे आवर्स. चाहे तुम कितनी भी ड्रेसेस बदल के आ जाओ, चाहे कुछ भी करो, बट हमारे मिक्स एंड विंडोज हमारे ही रहेंगे. आवर्स आवर्स, सिर्फ हमारे. आई डो नॉट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डो नॉट वांट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, सो देयर. ना तो मैं तुम्हारा कुछ लेना चाहती हूँ, ना तुमसे कुछ देना चाहती हूँ, और कहना चाहती हूँ कि ऑक्सन विंडोज आर बिलोंग टू ours. Hey Lamo, Natalia Stepnova, I don't want the meadows, but I am acting of principle. If you like, I'll make you a present of them. Now Natalia Stepnova, Oxon Meadows को मैं नहीं चाहता, बट मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं इसको आपको प्रेजेंट यानी गिफ्ट कर सकता हूँ इफ़ यू वांट. बस ये सारी बातें हैं, एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों की बात है. नटालिया, आई कैन मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ. मैं उन्हें खुद को प्रेजेंट कर सकती हूँ, गिफ्ट कर सकती हूँ, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो खुद मेरे हैं. योर बिहेवियर इवान वेस्लोविच इज स्ट्रेंज. तुम बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हो, टू से द लीस्ट. अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड. लास्ट ईयर वी लेंट यू our threshing machine, although on account that we had to put off our own threshing till November, that you behaved to us as if we were gypsies, giving me my own land. Indeed, no real, that's not only of neighborly, in my opinion, it's impudent if you want to know. Now, Natalia becomes so aggressive over these talks of Lamo, because both of the parties are not, you can say, wrong at their point, but there is a kind of confusion and misunderstanding. नाउ नटालिया वॉन्ट्स टू से कि मैं उन्हें खुद को प्रेजेंट कर सकती हूँ, बिकॉज वो मेरे ही है. तुम्हारा बिहेव इसान वेस्लोविच काफ़ी स्ट्रेंज है. जो तुमने लास्ट में बात की वो तो बिल्कुल ही, क्योंकि तुम ऐसा पहले भी कर चुके हो. हम सोचते तुम एक गुड नेबर हो, एक फ्रेंड हो, और लास्ट ईयर जब हमने तुम्हें किराए पर थ्रेसिंग की मशीन दी थी. थ्रेसिंग मशीन कौन सी होती है? जिसमें से आप कोई भी फसल डालते हो और उसमें से आपके दाने बाहर आते हैं, और जो आपकी अदर फसल है वो किसी यू कैन से आपने तूड़ा सुना होगा, उसके फसल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो चारे के तौर पर काम आती है. Although on that account we had to put all our threshing till November, इसलिए हमने तुम्हें कब तक दी थी? नवंबर तक हमने थ्रेसिंग मशीन भी दी थी. बट यू बिहेव टू अस इफ वी आर जिप्सीज, हम जिप्सीज की तरह हमसे बिहेव कर रहे हो, जैसे हम तो यहाँ के हैं ही नहीं.
तुम मुझे मेरी ही ज़मीन देने की बात कर रहे हो। ये लैंड कौन है, कौन सी है? ऑक्सन मीडोज, राइट? इंडीड, वास्तव में। नो रियली, दैट्स नॉट ऑल नेबरली, शायद ये तो बहुत ही बिना किसी नेबरली के बात है। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्रूडेंट इफ यू वॉन्ट टू नो, अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं बता दूं, ये बहुत ही तौहीन है मेरी, राइट? लमो, देन यू मेक आउट दैट आई एम ए लैंड ग्रैबर, तुम्हें क्या लगता है मैं एक जमीन हड़पने वाला हूँ? मैडम, नेवर इन माई लाइफ आई ग्रैब्ड एनीबडीज एल्स लैंड एंड आई शैल नॉट अलाउ एनीबडी टू अक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ज़मीन हड़पने वाला हूँ? मैडम, मैंने ऐसा अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया है, और ना ही अपनी किसी को हड़पने दी है, और ना ही कभी किसी और की हड़पी है। क्विकली स्टेप टू द कैरफ एंड ड्रिंक मोर वाटर, अब उसकी जो धड़कन है वो बढ़ने लगी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहता है, और वो पानी पीते पीते कहता है, ऑक्सन मीडोज आर माइन, मेरे हैं ऑक्सन मीडोज, आपके नहीं। नटालिया, इट्स नॉट ट्रू, दे आर, ये बिल्कुल सच नहीं है, वो हमारे हैं। लमो, माइन। यहाँ हमें पता चलता है दोनों ही बहुत बड़े झगड़े में फंस चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे लमो है, हमारी नटालिया है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। नाउ यहाँ उनकी बात एक झगड़े में फंस जाती है, जबकि वो क्या है, बिल्कुल भी एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं। फिर भी एक छोटी सी बात पर उनका झगड़ा हो जाता है, और यहाँ उन दोनों के प्रपोजल की बात खत्म हो जाती है। नटालिया, इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड माई मूवर आउट टू द मिडोज दिस एवरी डे, रिमेंबर दिस, व्हाट हियर नटालिया से। नाउ नटालिया वांट्स टू से कि वो अपने मूवर्स को अपने ऑक्सन मीडोज में से बाहर निकालेगी। दैट मीन्स मूवर्स, व्हाट डू मीन द मूवर्स हियर? with which we can cut off the grass. Natalia. Now here in this line we come to know that how Natalia and Lamos finally find themselves into a great dispute over a petty thing, right? Here Lamo wants to say that all these things are related to me, not of yours, even not the movers. Now Natalia says, है ना, what Natalia says, you dare, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें उनको भी अपना बोलने की? लमो, clutches at the heart, अपने हार्ट को पकड़ते हुए, ऑक्सन मीडोज और माइन, वो मेरे हैं। यू अंडरस्टैंड, माइन, तुम्हें समझ में आती है ये बात, मेरे हैं वो। नटालिया, प्लीज डू नॉट शाउट, तुम मेरे ऊपर चिल्ला नहीं सकते। यू कैन नॉट शाउट योर सेल्फ हॉर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ, तुम अपने घर जाकर चिल्लाओ, अगर तुम्हें चिल्लाना है तो यहाँ तुम बैठ कर चिल्ला नहीं सकते हो। नाउ हियर लमो, if it wasn't, madam, for the awful excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I would talk you in a different way. Now yell, वो अगेन चिल्लाता, ऑक्सन विंडोज आर माइन एंड नटालिया सेज आवर्स। लोमो कहता है कि मैडम ये बहुत ही दुख की बात है, आपको किसी की पैल्पिटेशन की भी नहीं पड़ी है, मेरे अंदर सब कुछ ये सब चलती ही रहती है। मैं आपसे किसी और तरीके से बात कर रहा हूँ, और फिर इसके बाद भी आपको बस समझ नहीं आ रही, तो चिल्लाकर कहता है कि ऑक्सन विंडोज मेरे हैं। आफ्टर दैट उनमें एक डिस्प्यूट और हो जाती है, वही कहते कहते वो कहते हैं नहीं मेरे हैं, और वो कहता है नो माइन, नटालिया सेज आवर्स, देन इसे माइन। तभी किसकी एंट्री होती है? शुबुको, स्टेफन शुबुको, राइट? शुबुको, व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर योर शाउटिंग फॉर? एकदम शुबुको आता है, तो एक दूसरे को चिल्लाते हुए देखता है, वो कहता है कि भाई क्या मैटर हो गया, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो, एक दूसरे पे चिल्ला क्यों रहे हो? Natalia, Papa, please tell this gentleman who owns Oxen Meadows, we or he. Now, Natalia पापा से पूछती है कि पापा आप इन्हें बताएं कि ऑक्सन मेडोज किसके हैं, इनके या हमारे? शुभको, टू लमो डार्लिंग, द मेडोज आर आवर्स। वो कहती है कि डार्लिंग, मेडोज तो हमारे ही हैं। यहाँ शुभको जो है वो भी डिस्प्यूट में अपने आप को यू कैन से क्लैरिफाई कर लेता है, राइट? So after that we come to know that Lomo says, but please Stephen Stepanovich, how they can be yours? तुम लेकिन ये सोचो ना कि वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। शुभको को बोलता है, डोंट बी रीजनेबल मैन, इतना ही ज़्यादा रीजनेबल नहीं बनिए। मेरी आंट के ग्रैंड मदर ने ये मिडोज आप लोगों को टेम्परेरी दिए थे ताकि आप इनका फ्री यूज़ कर सके, आपके ग्रैंड फादर के पीजेंट्स को दिए थे, राइट? द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर द 40 years, उन्होंने 40 साल भी इसको यूज़ किया, गोट अकस्टम्ड
to it as if it was their own, but it happened that उन लोगों ने उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जैसे कि वो सिर्फ उसी के ही हैं, बट क्या है कि वो हमारे हैं। नाउ शुभ को फिर से उन लोगों का झगड़ा सुलझाने की बजाय वो क्या करता है, वो करता है डायरेक्ट उनके बीच में लड़ाई में एक तीसरे की एंट्री। वो खुद है इस थर्ड पर्सन। शुभ को कहता है एक्सक्यूज मी माई प्रीशियस, अरे आप इतना समझदार होकर ऐसी बात कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी यू फॉरगेट जस्ट दिस दैट द पीजेंट डिड नॉट पे योर ग्रैंडफादर्स एंड ऑल दैट बिकॉज द मिडोज वर इन डिस्प्यूट। अरे हमारे जो पीजेंट्स थे वो ग्रैंडमदर को आपकी आप कुछ पे था वो चुका नहीं पाए थे क्योंकि इसी वजह से मिडोज पर डिस्प्यूट हुआ था। एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आवर्स, वो जो भले ही चुका ना पाए बाद में मेरे ग्रैंडफादर के फादर ने उनको चुका दिया था, वो अब क्या है, अब वहाँ पर वो सब जानते हैं कि अक्सर मिडोज जो है वो हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैव नॉट सीन द प्लान, शायद तुमने अभी तक वो चीज़ देखी ही नहीं है जो अभी तक हो चुकी है। लमो आई प्रूव यू दैट यू आर दे आर माइन, मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ कि वो मेरे हैं। शुभ को यू वुड नॉट प्रूव इट माई डार्लिंग, तुम इसे प्रूव करोगे ही कैसे। लोमो आई शल, मैं कर लूँगा। शुभ को डू यू वन वाई यल लाइक दैट, तुम शुभ को लोमो को कहता तुम इतनी बुरी तरीके से यल क्यों कर रहे हो, ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए, राइट। यू वुड नॉट प्रूव एनीथिंग, तुमने अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं किया है। जस्ट बाई येलिंग, तुम सिर्फ चिल्ला ही रहे हो, नथिंग एल्स, राइट। आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वट आई हैव, और मैं कुछ भी ऐसा इंटेंड नहीं करना चाहता जो आपके पास नहीं है। वट शुड आई, मैं क्या कर सकता हूँ, वट शुड आई, मैं क्या चाहता हूँ। एंड यू नो माई बिलव्ड इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट आई वुड मच सूनर बी विडोज टू द प्रेजेंट देन यू देयर, अगर तुम इसी तरह से चिल्लाते रहे तो मैं ये जो भीख सुन विडोज है वो तुम्हारी बजाय मैं किसको दे दूंगा, उन्हीं मजदूरों को दे दूंगा, तुमसे अच्छे हैं, समझ लो इस बात को। नालमो कहता आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाउ हैव यू द राइट टू गे अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, तुम किसी को किसी की प्रॉपर्टी कैसे दे सकते हो, तुम्हें ये राइट किसने दिया। शुभ को कहता है यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। शुभ कहता है तुम इस चीज़ को ग्रांट नहीं ले सकते कि मेरे पास राइट है या नहीं है, बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बिंग स्पोकन टू दैट ऑफ टोन एंड वॉइस एंड सो, मैं तुमसे इस तरीके से बात कर ही नहीं रहा हूँ जिस तरीके से तुम मुझे सुन रहे हो। आई यंग मैन I'm twice your age, मैं तुमसे तो दुगना बड़ा हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट, मैं तो तुमसे आराम से बात करने के लिए बोल रहा हूँ, तुम आराम से बात क्यों नहीं कर रहे हो। लोमो नो यू जस्ट थिंक आई एम ए फूल, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ। वॉन्ट टू हैव मी ऑन, तुम मुझे यही सुनना चाहते हो। यू कॉल मी माई लैंड योर्स, तुम मेरी ज़मीन को अपनी ज़मीन बुला रहे हो। एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यूर कामली एंड पोलाइटली, और फिर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे आराम से बात करूँ। गुड नेबर्स डू नॉट बिलीव लाइक दैट, वो अच्छे जो पड़ोसी होते हैं वो बिलीव नहीं करते हैं, इस तरीके से बात नहीं करता है। स्टेफन स्टेपनोविच, राइट। यू आर नॉट ए नेबर यू आर ए ग्रैबर। नाउ लमो जो है उसको एज एब्यूजिंग मैनर में उसको बड़ा सा नाम लेता है और वो कहता है कि तुम एक नेबर नहीं, एक हड़पने वाले इंसान हो जो किसी की लैंड जो है वो हड़पता है। शुभ को व्हाट इज दैट, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, रुको रुको एक मिनट। नटालिया पापा सेंड द मूवर्स आउट ऑफ द मिडोज एट वंस, पहले आप उन मूवर्स को, थ्रेसिंग मशीन्स को सारे को मिडो से बाहर निकालिए, नहीं तो ये उसको भी हड़प लेगा। शुभ को व्हाट डिड यू से सर, आपने क्या कहा। नटालिया ऑक्सन मिडोज आर आवर्स एंड आई शैल नॉट गिव देम अप, आई शैल नॉट गिव देम अप, शैल नॉट गिव देम अप। नटालिया बीच में कूद पड़ती है, वो कहती है कि ऑक्सन मिडोज जो वो हमारे हैं, हम किसी को नहीं देंगे और किसी को भी नहीं देंगे, रिमेंबर दैट, राइट। यहाँ शुभ को जो है वो कहते हैं, सॉरी फॉर दैट, शुभ को वॉज दैट डिड यू से, तुमने क्या कहा। नाउ नटालिया पापा सेंड द वी हैव डन हियर, राइट। Lomo, we will see
देख लेंगे हम आपको। आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट, मैं ये कोर्ट में मैटर लेकर जाऊंगा। एंड देन आई विल शो यू, मैं फिर इसके बाद आपको बताऊंगा कि मॉक्स एंड मेटोज जो है वो किसके हैं। शुभ को टू कोर्ट, कोर्ट यू कैन टेक टू इट, कोर्ट तुम जा सकते हो, कोर्ट ऑल दैट यू कैन, बिल्कुल बेशक जा सकते हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर ए चांस टू गो the court, all that, and pity forger all your people were like that, all of them। देखिए अब शुभ को जो है वो भी इनको लताड़ने लग जाता है। वो कहता है तुम्हारे तो परिवार वाले ही ऐसे ही हैं, तुम तो सारे ऐसे ही हो, जाके कोर्ट में खड़े हो जाते हो, तुम लोगों को तो मज़ा ही इस चीज़ में आता है, ये बात वो बात सब कुछ यही सब कहकर वो उनको एक पीटी फोगर पिलाता है। यानी कि तुम तो बिल्कुल एक ऐसे इंसान हो, ऐसे बिलोंग करते हो जिससे आप हमेशा दूसरों की परेशानी का सबब बनते हो, नथिंग एल्स, राइट। नाउ व्हाट डज लमो से, लमो नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, कभी भी ऐसे लोगों के लिए माइंड मत कीजिए, मुझे ऐसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द लमो हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, वो हमेशा से ही ऑनरेबल पर्सन रहे। एंड नोट वन हैज़ एवर ट्राई टू एम्बलमेंट लाइक योर ग्रैंड फादर, कोई भी तुम्हारी तरह किसी की बेइज्जती नहीं करता घर बुला के, जैसे तुम्हारे ग्रैंड फादर ने की थी। तो देखिए अब एक चीज़ है यहाँ पर, वो एक दूसरे के एंसेस्टर्स पे बात कर रहे हैं, राइट। वो एक दूसरे के एंसेस्टर पे बात करते करते क्या कहना चाहते हैं, व्हाट दे वांट। वो एक दूसरे को बहुत ही गाली गलौज में उतर चुके हैं। ना शुभ को कहता है यू लोमोव हैड लुनेंसी इन योर फैमिली, हमेशा से तुम आलसी और हमेशा यसी लोग रहे हो। नतालिया ऑल ऑल ऑल, तुम सभी के सभी। शुभ को योर ग्रैंड फादर वॉज ए ड्रंकार्ड एंड योर younger aunt, that is Nastasha Mihailovna, राइट, रन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। अब वो उनको गाली देने लग जाता है कि तुम्हारे तो घर में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि तुम्हारी दादा जो थे वो तो बहुत बड़े पियक्कड़ थे, और तुम्हारी जो आंट थी, जो तुम्हारी आंटी थी, वो किसी आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। सो इस तरीके से वो एक दूसरे की फैमिली के अब्यूजिंग मैनर में करते हैं, स्टार्ट है, गाली गलौज पे उतर आए हैं। नाउ हियर लमोस वांट्स टू से, लमो एंड योर मदर वाज हम बैग, तुम्हारी मदर की बहुत बड़ी बैग है, क्लचेस ऑन हिज हार्ट, यानी कि वो अपने हाथ दिल को पकड़ कर बात करने की कोशिश कर रहा है। एंड समथिंग पुल्ड इनसाइड मी, और कुछ ना कुछ मेरे अंदर चल रहा है। वही सेज माई हेड हेल्प वॉट, अब मेरा हार्ट जो है पल्पेशन की वजह से ज़्यादा धड़क रहा है, इसलिए आप मेरी हेल्प करे, मुझे पानी दे। शुभ को योर फादर वॉज ए गजलिंग कैमरा, अब शुभ को तब भी नहीं रुक रहा है, वो उसके हार्ट को मतलब देख नहीं रहा उसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है, फिर भी उसको उसके फादर को क्या बोल रहा है, वो तो एक बड़ा गुंडा और जुआरी था। नटालिया एंड देर हैवंट बीन मैनी बैकबाइटर टू इक्वल योर आंट, और सारे के सारे नटालिया जो है अब उसकी आंट के बारे में कहती कि तुम्हारी आंट तो बिल्कुल ही बहुत ही बड़ी चुगलखोर है, जो सभी चुगलियाँ करती रहती है। शुभ को कहता है माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप नाउ, शुभ को कहता है मेरा एक दायां पैर जो है वो सो गया है। यू आर एन इंट्रूगर, तुम तो बाहर के हो। ओह माई हार्ट, इट इज़ नॉट ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू री आई कैन सी स्टार्स वेयर माई हैट, यानी कि अब शुभ को भी थोड़ा सा रिएक्ट करने लग जाता है कि मुझे थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो आफ्टर नटालिया इट्स अ लो, इट्स डिसऑनेस्ट एंड इट्स अ मीन, तुम कितने घटिया इंसान हो, कितने लो हो, कितने ही घटिया इंसान हो, यानी कि लोमो को कहती है शुभ को। एंड यू आर जस्ट ए मेलिशियस डाउट डबल फेस्ड इंट्रीगर, यस तुम तो सिर्फ एक घुसपैठ ही हो, वो भी डबल फेस जिसका एक फेस है ही नहीं। लोमो हियर इज माई हैट, मेरी हेयर है, माई हार्ट विच वे, मुझे जाना, यानी कि अब यहाँ से वो डिस्प्यूट में से भागना, भाग तो नहीं रहा है लेकिन किसी न किसी तरीके से वहाँ से बचना चाहता है। आफ्टर दैट वेयर इज़ द डोर, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे मेरी हेड दीजिए और मैं जा रहा हूँ। ओ आई थिंक आई एम डाइंग, मुझे लग रहा है मेरा मैं मर रहा हूँ। माई फुट क्वाइट नम, मेरा जो फुट है, मेरा पैर है, वो भी बिल्कुल नम हो चुका है। गोस्ट टू डोर, डोर की तरफ जाता है। तभी शुभ को कहता है, उसको पीछे पीछे पकड़ते हुए कहता है एंड डो नॉट सी माई फुट इन हाउस अगेन, दोबारा से मेरे घर में पैर मत रख देना। नटालिया टेक इट आउट टू द कोर्ट, वेल सी, हम तुम्हें कोर्ट में देखेंगे। शुभ को डेविल टेक हिम नाउ, वो कहता है कि जाओ अपनी ट्रॉफी लेकर यहाँ से भाग जाओ। नटालिया व्हाट ए रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन हैव वंस नेबर आफ्टर दैट। नाउ नटालिया कहती है
कि कितना बड़ा रास्कल है, कितना बड़ा बदमाश इंसान है। एक नेबर ऐसा कभी नहीं हो सकता। शुभू को कहता था विलन द स्केयर क्रो। अब वो कहता है कि ये तो बहुत बड़ा विलन निकला, मुझे क्या पता था ये ऐसा निकलेगा। नटालिया द मोस्ट, वो एक उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं। फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड देन ही इम्प्यूट्स टू अब्यूज हिज पैलेस। तो उसने हमें क्या कर दिया, हमारी लैंड ले ली और फिर उसके बाद हमें अब्यूज़ भी कर रहा है। Now Shibuko and that blind hand, yes, that trembling host has a confounded cheek to make a proposal and so on. What a proposal! Now शिबुको है, कितना बुरा इंसान है वो, कितना गंदा इंसान है वो, फिर भी हमारे घर इतना बड़ा मतलब लेकर आ रहा है, फिर भी वो तुमसे प्रपोजल, शादी का प्रपोजल लेने आया था। तो तभी ये बात नटालिया को पता चलती कि वो कहती है व्हाट प्रपोजल, क्या वो मुझे प्रपोज करने आया था। शिबुको व्हाई ही कम टू प्रपोज यू, उसे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नटालिया टू प्रपोज, वो दोबारा सुनती है क्या उसने प्रपोज के लिए बोला, टू मी, मुझे। व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। शुभ को सो ही ड्रेस अप इन द इवनिंग क्लोथ्स द स्टफ सो सेज द विजन फेस फ्रॉम। वो उसको कहता है कि उसने इस तरीके से जो स्टफ पहना हुआ था, सब कुछ पहना हुआ था, वो सब क्या है, वो सब के सब आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि वो इतना ड्रेसअप होकर क्यों आया, वो आपको प्रपोज करने ही आया था। देखिए हियर इज द टर्निंग पॉइंट, कि वो किसी न किसी डिस्प्यूट से लेकर अब अपनी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, डिस्प्यूट से एकदम से मोड़ आ जाता है और वो अपनी जो फोकस है वो प्रपोजल पर बना लेती है, क्योंकि नटालिया को पता नहीं था कि अभी उसके लिए प्रपोजल आया था, वरना वो लड़ती भी नहीं, बिकॉज शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट मैरिड विद लमो। सो हियर वी विल डू टिल हियर, okay, remember this. So we'll meet in the next video with the next part of this very lesson. I hope this has been clear to you now. Take care till, and we'll meet in the next video. Thank you.